Hemophilia is a medical condition in which the ability of the blood to clot is severely reduced, causing the sufferer to bleed severely from even a slight injury. On the occasion of World Hemophilia Day, which falls in the month of April, MediCircle is conducting a series on hemophilia featuring eminent hematologists to spread awareness about this medical condition. Hi, this is Amrita Priya, and you are watching MediCircle. Today, we have Dr. Srinath Shirsagar on our show. Dr. Srinath Shirsagar is a leading hematologist in Mumbai. He is also a hemato-oncologist and bone marrow transplant specialist. Dr. Srinath provides world-class treatment to his patients at Global Hospital, which is an oncological center that runs under his leadership. He has many national and international publications to his credit. Welcome, Dr. Srinath, to MediCircle. Thank you so much. Thank you, Amrita, for kind introduction. And we will like to discuss on hemophilia. Yes. So hemophilia basically is one of the rare bleeding disorder, and it is a single gene mutation X-linked disorder, and that's because of that there is a problem in the fibrin formation, and there are multiple factors which are also are proteins which are absent in the patient's body, and that will disable them to form this platelet plug or fibrin clot, and that will stop the bleeding. Yes. So generally because of it, it's X-linked disorder and it is a single gene mutation disease. So mostly males are more commonly affected than females, and there are two types of hemophilia. One is the hemophilia A, which is caused due to the deficiency of factor 8, and there is also hemophilia B, so which is caused due to deficiency of factor 9. And generally, when these factors are deficient in the body, so there is a platelet plug or fibrin clot is not formed, and this patient continues to bleed despite on small or trivial injury. The bleeding does not stop. So, incidence of hemophilia A in a Indian population will be approximately. It is a rare disorder. So, generally, 1 in 5,000 patient will be having this disorder. And so, generally, hemophilia is categorized into three. Based on their severity, hemophilia is classified into three categories. One is the mild, which is their factor levels are on a more on higher side, and moderate when the factor levels are between 1 to 5%, and severe when the factor levels are less than 1%. Okay. So in severe, there is a high tendency of patients to bleed despite of small injury and small cut. Okay. तो डॉक्टर आपने अभी बताया हीमोफीलिया के बारे में, तो क्या कोई हेरिडिटरी फैक्टर भी है जो फैमिली में रन करता हो, एक क्लॉटिंग फैक्टर फैमिलीज में, जिसके कारण लोग प्रोन हो जाते हैं हीमोफीलिया के लिए? जनरली हीमोफीलिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये फैमिलीज में रन होता है. सो फ्रॉम जनरली आप हिस्ट्री में डिटेल में जाएंगे अगर हीमोफीलिया पेशेंट्स के, तो तो उनके मैटरनल साइड में, मतलब उनके माँ के साइड में किसी एक जन को हीमोफीलिया होने की संभावना होती है, मतलब उनमें हीमोफीलिया होता है. सो जनरली पुरुष लोगों में हीमोफीलिया ज्यादा रहता है. जनरली अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है तो उनके मामा नहीं तो उनके दादाजी को हीमोफीलिया होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो उनके माँ के साइड वाले हैं. और जनरली फीमेल्स आर द कैरियर्स, मतलब फीमेल्स जो रहती है वो अपने उनको उनमें हीमोफीलिया नहीं दिखा जाता, पर वो अपने बच्चों में हीमोफीलिया ट्रांसफर कर सकते हैं. सो जनरली हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये जेनेटिक से ऊपर से नीचे आने वाली बीमारी है. अच्छा. और ये जनरली एक दिन रहता है. जनरली पुरुषों का क्रोमोसोम 46 XY रहता है, और स्त्रियों का क्रोमोसोम 46
XX रहता है, तो फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम होने के कारण उनमें जो हीमोफीलिया रहता है वो जनरली इतना सीवियर फॉर्म में नहीं रहता है। वो ओके बिकॉज़ एक एक्स क्रोमोसोम उनका नॉर्मल रहता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया रहता है। पर एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होने के वजह से उनमें ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं रहते और दे आर कैरियर फॉर इट। बट ओके पुरुषों में वो एक्स वाई क्रोमोसोम देखा जाता है, उनमें खाली एक्स क्रोमोसोम एक ही रहता है। तो जनरली हम्म जब भी वो एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है, तभी वो पुरुषों में हीमोफीलिया ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है और पुरुषों में वो सिम्पटम्स और हीमोफीलिया के जो भी लक्षण हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं कंपेयर्ड टू फीमेल्स। ओके तो मतलब मैटरनल साइड से हेमोफीलिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं लोगों। हीमोफीलिया है जो है वो फैमिलीज में होने के कारण, और मैटरनल अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है तो मैटरनल साइड में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ओके अब कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं मैटरनल साइड्स के में होने का। ओके मैटरनल साइड से ही आता है जनरली। ऑल राइट ओके। और अगर किसी को हेमोफीलिया है तो फिर वो क्या करे, बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग है, उसको कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए? सो हीमोफीलिया है तो अपने को बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म तो अगर अपने को पता है कि ये पेशेंट ये बच्चे को हीमोफीलिया है, और जनरली हीमोफीलिया जो रहता है इंसिडेंट, कुछ कुछ पेशेंट्स में इंसिडेंट फाइंडिंग भी रहता है। अगर पेशेंट किसी डेंटिस्ट के पास जाता है, अगर उसके माँ बाप पेशेंट बच्चे के माँ बाप अगर बच्चे को लेकर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नहीं तो कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करवाना पड़ता है उनका, तो उसके बाद उनका ब्लीडिंग नहीं रुकता। तो उनके हम्म उनमें हम लोग जनरली उन बच्चों में और उन पेशेंट्स में हम लोग हीमोफीलिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिनके छोटा सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाता। तो जनरली पर अगर किसी को पता है कि ये पेशेंट को हीमोफीलिया है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने को देखना है कि वो पर्टिकुलर पेशेंट को कहीं इंजरी ना हो। हम्म अपने को ये ख्याल रखना होगा अगर वो साइकिल बाइसिकल चला रहे हैं तो वो हेलमेट पहने, नी कैप पहने, एल्बो एल्बो कैप पहने, और कम से कम उनमें इंजरी होने का अ, होने दे। अगर वो कोई बच्चों को डेंटल प्रोसीजर के लिए प्लान करना है, नहीं तो कोई छोटी सर्जरी के लिए प्लान करना है, तो पहले ही डेंटिस्ट को हम लोग इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये पेशेंट को हीमोफीलिया ए नहीं तो हीमोफीलिया बी है। तो जनरली विद फैक्टर सपोर्ट हम लोग आगे का प्रोसीजर और प्लान करके हम लोग फिर प्रोसीजर प्लान कर सकते हैं। हम्म। और तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर एनी पेशेंट को सीवियर हीमोफीलिया ए तो सीवियर हीमोफीलिया बी है, तो जनरली एक आईडी कार्ड वो बनवा सकते हैं, और वो अपने साथ वो हमेशा आईडी कार्ड रखना उनको ज़रूरी रहता है। इन केस हम्म ऑफ कोई इमरजेंसी फिर कोई डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, नहीं तो कोई और जगह पे इन केस ऑफ एक्सीडेंट उनको अगर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है तो उनको पता चलता है कि ये पेशेंट को हीमोफीलिया है, तो उस तरह से हम लोग उनको ट्रीटमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि अगर हिमोफीलिया है तो हमेशा प्रिवेंटिव एक्शंस के साथ वो प्रिवेंटिव एक्शन। का कोई भी अपना अगर इससे काम करे। बात ये है कि आप हीमोफील अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया नजदीकी हीमोफीलिया सेंटर को जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं, और इन केस ऑफ कोई ब्लीड होता है नहीं तो कोई इंजरी होती है तो तुरंत अपने पास कुछ फैक्टर्स रखिए, और तुरंत हम्म वो फैक्टर्स लेना जरूरी है इन केस ऑफ ओके इंजरी और कोई ब्लीडिंग होता है तो। ओके और क्या हेमोफीलिया का क्योर है कि इसके साथ ही चलना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग? सो हीमोफीलिया का क्योर हाँ है। अभी काफी क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स वो दिशा में चल रहे हैं। जनरली हम्म अभी जीन थेरेपी अभी काफी अवेलेबल हो रही है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली अभी काफी सारे ट्रायल्स इस बारे में हो चुके हैं जीन थेरेपी के इसमें। ये जीन थेरेपी बेसिकली क्या है, जिसमें वो हीमोफीलिया एक डिफेक्टिव जीन के वजह से होता है, तो वो जीन हम्म हम चेंज करवाते हैं। साइंस ने इतना एडवांस किया कि हम लोग अभी वो जीन भी चेंज करवा सकते हैं। ओके और ये जीन चेंज करवाने के बाद जनरली उनका जो फैक्टर्स प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल होना चालू हो जाता है। तो जनरली होपफुली आगे के कुछ समय में हीमोफीलिया के लिए क्योर डेफिनेटली हो सकता है। और अभी अपने पास पुराने ज़माने में खाली शॉर्ट एक्टिंग फैक्टर्स अवेलेबल थे।
अभी लॉन्ग एक्टिंग फैक्टर्स भी अवेलेबल है अपने पास, तो जनरली Okay. एक फैक्टर के थ्रू काफी दिनों तक वो फैक्टर लेवल्स उनके ऊपर आ सकते हैं और वो लेवल मेंटेन हो सकते हैं उनके फैक्टर्स के। और दूसरी एक चीज है कि कुछ नई दवाई अवेलेबल हो रही है, जैसे कि फिटुसरान, जिनमें वो ब्लीडिंग का रेट इन हीमोफीलिया के पेशेंट में काफी हद तक कम हो जाता है। सो Okay. फ्यूचर काफी अच्छा है फॉर द हीमोफीलिया पेशेंट। होपफुली आगे चल के हम हीमोफीलिया पेशेंट का जो ब्लीडिंग है वो काफी हद तक कम करने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हीमोफीलिया पेशेंट का प्रिवेंशन के लिए वी शुड ऑल दिस, ये जो ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी अगर आगे चल के होने वाली हो काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकेस हम लोग अगर हीमोफीलिया पेशेंट अगर आने ही ना दे, हम लोग आगे से स्क्रीनिंग करा के रखे कि इनके माता इनके मैटरनल साइड में उनके ग्रैंडफादर में और इनके मामा जी में अगर हीमोफीलिया है, तो हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग करा के अगर देख सकते हैं कि होने वाले बच्चों में हीमोफीलिया है कि नहीं है। अगर हीमोफीलिया Okay. है तो हम लोग अवॉइड करना ही, वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना और प्रेगनेंसी ना होने देना आगे, वही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ओके, तो मतलब हमारी जो मेडिकल फील्ड है इतनी तरक्की कर रही है कि हम चाहे तो इसको रोक सकते हैं थ्रू पहले ही एग्जामिन करके प्रेग्नेंट लेडीज को, जो कि धीरे आगे बढ़ेगा इस क्षेत्र में काम जो है। जी बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी मतलब इन केस पेशेंट को हीमोफीलिया है तो पेशेंट का जो डिफेक्टिव जीन है वो हम लोग चेंज करवा सकते हैं नॉर्मल जीन से और वेक्टर जीन से, और उसके अच्छा, वजह से उनका जो फैक्टर्स का प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा और उनमें वो ब्लीडिंग जो होती है वो आगे चल के नहीं होगी। ओके, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज अ क्यूरेटिव मेजर, इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर। क्यूरेटिव मेजर्स हैं और प्रिवेंटिव मेजर इसके पहले जो आपने बताया कि अगर प्रेगनेंसी को आगे ही ना बढ़ाया है तो प्रेगनेंसी अगर डिटेक्ट कर ले कि प्री प्रेगनेंसी में हम लोग ये बच्चे में हीमोफीलिया होने के चांसेस है, तो हम लोग वो प्रेगनेंसी पहले ही हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। यस, तो इन सब से हम हीमोफीलिया को कंट्रोल कर सकते हैं बारे में, क्योंकि एक रेयर डिजीज है इसलिए लोगों को मालूम है नहीं खास इसके बारे में। बहुत कम जानकारी है। हाँ, बहुत कम जानते हैं, बिल्कुल रेयर है। और जो आपने क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स बताया वो भी रेयर है, लोगों में ज्यादा जानकारी है नहीं। तो इसीलिए अवेयरनेस सीरीज जो है आपके जैसे एमिनेंट डॉक्टर्स के द्वारा बहुत हेल्पफुल होगा जनरल पब्लिक को समझने में कि हीमोफीलिया क्या है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।